اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ جو ہے ملازم رکھتے ہیں یا یوں کہیے آپ جو ہے نوکر رکھتے ہیں کسی کو، اور جب تک وہ کام صحیح کرتا رہتا ہے آپ اس کو رکھتے ہیں، اور جب آپ کے حساب سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ یہی تو کرتے ہیں نا کہ اس کو ہٹا کر کے کوئی ایسا دوسرا نوکر یا اپنا کام کرنے والا تلاش لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تم اس قابل نہیں رہے۔ یعنی جو مالک کی مرضی کے حساب سے کام کرتا رہتا ہے اس کو مالک رکھتا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے لگتا ہے یا ایک دو کام کرنے لگے تو خیر اس کے لیے تو مان لیا چھما کر دیا، ارے چھوڑو یار، آدمی تو ہے، ایک کام دو کام اپنے من سے کر لیے۔ لیکن اگر جو وہ سارے کے سارے کام اپنی مرضی سے کرنے لگے، مالک کہے عام وہ کہے املی، وہ کہے رات تو کہے نہیں رات نہیں دن ہے، تو مالک اس طرح سے کرنے لگے، یعنی اپنا مائنڈ اپنا دماغ چلانے لگے اور اسی کے حساب سے کام کرنے لگے۔ جب اس سے مان لیا وہ مالک عاجز آ جاتا ہے کہ اب یہ خود مالک بن رہا ہے، اب ہٹاؤ اس کو، اب یہ نوکر والے گٹس اس کے اندر موجود نہیں ہے، اب اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ، یہی کرتے ہیں نا۔ ٹھیک یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب ایک قوم راہ راستے سے بھٹک جاتی ہے، بتانے اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ راستے پر نہیں آتی، ہٹ دھرمی کرتی ہے اور اپنے منچاہے طریقے سے سارے عمل کرنے لگتی ہے، تو اللہ پاک اس قوم کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ پر وہ ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں یا اس کی منشا کے مطابق کام کریں۔ ابھی تک ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ ہاں پہلے کے لوگ ایسے تھے، اور جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں اور دوسری قوموں کے بارے میں ہم پڑھتے تھے، یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ دیکھو بالکل بھٹک گئے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی چیز اسلام کی باقی نہیں رہی ہے، سارے کے سارے یہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے، تو کسی کی بستی کو پلٹ دیا، کسی کے اوپر طوفان پانی کا آ گیا، کسی کے اوپر ہوا کا آ گیا، اس طرح سے نامعلوم کون سی ایسی ان کے اوپر وہ آئیں، اور وہ دھیرے ساری کی ساری کام ختم ہو گئے، اور اس کے بعد میں جو قوم اٹھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتی رہی۔ اور پھر یہی نہیں کہ مان لیا وہ بھی اگر یہی کام کرنے لگے تو اس کے لیے یہی قانون یہی قاعدہ ہے۔ تو محترم، اب ہم لوگ اب واقعی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، پہلے ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اس میں جتنی قرآن مجید میں باتیں کہی گئی ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ہم سب لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں، اور وہی طریقہ اگر آج ہم بھی اختیار کریں گے، جو پہلے کے لوگ جو بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے منمانی طریقے سے زندگی گزارتے رہے، اور تو وہی اگر ہم آج کر رہے ہیں تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں نہ ہمارے سامنے آئیں، لیکن اس کا دستور یہی ہے، اگر پورے کے پورے راہ راستے سے ملیا بھٹک جائیں گے ہم تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ تو محترم، اب ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ان سے کم نہیں بلکہ ان سے ایک ہاتھ آگے ہی جو ہے نکلے ہوئے ملتے ہیں۔ انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ایک دوسرے کو روکنا منع کرنا چھوڑ دیا تھا برے کام سے،
अच्छे काम की बात कहना बंद कर दिया था, और बुराई होते हुए देखते थे तो ज़बान से कुछ भी नहीं कहते थे, ये भी काम कहना छोड़ दिया था। और वही आज हाल हमारा है। हम दीन के नाम पर कौन कौन से काम कर रहे हैं। हमारा जिस फ़िरके से ताल्लुक़ है, जिस मसलक से ताल्लुक़ है, हम उसी की तबलीग, उसी पे मेहनत, उसी पे कोशिश हर वक्त करते रहते हैं। और यही नहीं, जितनी हो सकती है, जितना पैसा हो सकता है, हम अपने उसी फ़िरके के लोगों पर खर्च करते हैं, उनके मदरसे पर खर्च करते हैं, उनकी मस्जिदों में खर्च करते हैं। हम उनको अपने दूसरे फ़िरके को जो पहचानते हैं, उनकी टोपियों से, उनके पहनावे से पहचानते हैं। अरे ये तो वो लोग ही, अरे ये नफ़रत नहीं है तो और क्या है। अपने को हमारे मुसलमान भी कहते हैं और नफ़रत ऐसे करते हैं जैसे कपड़े लिबास देख लिए, उनसे सलाम कलाम भी नहीं करते। आप कह रहे होंगे मैंने कुछ लोग ऐसे हैं, हम सलाम करते हैं जवाब नहीं देते। अरे ना जवाब दें। जब कोई बंदा किसी को सलाम करता है, वो जवाब नहीं देता है, तो अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, वो उनका जवाब देते हैं। और जिनका जवाब फ़रिश्ते दें तो उनसे तो अच्छा हुआ जो जिनको आपने सलाम किया था उन्होंने जवाब नहीं दिया सलाम का। तो मतलब ये सोच होना चाहिए। हम अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में ढूंढ कर अपने फ़िरके के लोग लाते हैं, और उनसे पहले तय कर लेते हैं कि देखिए आपको ये और ये काम करने होंगे, आपको ये काम करना ही करना होगा। अगर ये काम तुमको मंजूर है तो तुम हमारे वहाँ आ सकते हो, वरना तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। अगर उसने किसी ने चूँ चला किया तो भाई हमसे ये तो काम नहीं होगा, कहता ठीक तुम बैठो अपने घर, हमारे वहाँ तुम्हारी गुंजाइश नहीं। मतलब ये है हम लोगों का, जिस फ़िरके से हमारा ताल्लुक़ है, हम अपने फ़िरके की तबलीग कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं हमें ये डर लगा रहता है, कहीं हमसे ये ना पूछ दिया जाए तुमने दीन का काम कब किया, तुमने दीन का काम कब किया। तुम तो अपने फ़िरके के लिए सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद कर रहे थे। हमें खटका इस बात का नहीं है कि आदमी की दीन को बात मालूम हो जाए, बल्कि हमें खटका ये लगा हुआ, ये हमारा आदमी है, ये हमारे मसला का आदमी है, इसको मान लो दूसरे ना बहका दें, ज़रा इसके पे निगाह रखना, ध्यान रखना, ये चीज़ होती है। तो मोहतरम, ये सोचने का मुकाम है। हमारे एक जो वो थे लतीफ़ साहब थे उन्नाव के, वो मान ये कहा करते थे, कैसे अल्लाह वाले हैं ये ऐ खुदा, मशवरे गुफ्तगू साजिशों की तरह। तो उनकी बात याद आती है कि जो मान लतीफ़ साहब बात ये मान कहा करते थे, ठीक इसी तरह से आती है। अगर किसी ने ज़ोर से अगर आवाज़ से थोड़ी सी आमीन कह दिया तो फ़ौरन जो है इमाम साहब का तेवर चढ़ जाता है। और अगर किसी ने इमाम साहब से पूछ लिया, अरे मौलाना साहब ये मान लिया ज़ोर से कुछ पढ़ते हैं और ज़ोर से कहते हैं, इतना सवाल पूछ दिया, इमाम साहब बताते हुए भी हंसी लग रही है, इमाम साहब ने वो जवाब तो शॉर्ट में नहीं दिया। ये नहीं कहा अरे ठीक है भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से भी कहा है और धीरे से भी कहा है। अरे मान लिया दोनों तरीके सही हैं, चाहे तो कोई धीरे से कह ले, चाहे ज़ोर से कह दे, ठीक, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो साहब दर्स कुरान दे रहे हैं, और दर्स कुरान के तर्जुमे में जो है आयत जो उनके सामने आई, तो उसमें कहाँ की बात कहाँ ला करके पूरी तकरीर उसी के ऊपर रख दी कि नहीं ये जोर से पढ़ना गलत है और बिल्कुल गलत है। अल्लाह पाक ने ये आयत फरमाई है कि तुम मान लिया दोहराओ नहीं और उसको गौर से सुनो। वो हुजूर
जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि नहीं तुम हमारी जो हम बता रहे हैं दोहराओ नहीं। अच्छा, आप ये सोचते थे कि अगर हम इसको बार बार नहीं कहेंगे शायद भूल जाएं, तो ये खदशा लगा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप वही बात बार बार कहने लगते थे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं भाई, आप परेशान ना हो, हम पढ़ रहे हैं, आप खामोशी से सुनते रहो, हम ये सब कुछ याद करवा देंगे, ये तो ना। और वहाँ की बात ला कर के नमाज में रख दी। ये मान लिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं जो पढ़ते हैं सीधी नमाज में, नहीं मना है। देखिए साफ साफ कुरान मजीद में लिखा हुआ। अरे कहीं ये ना पूछ दिया जाए क्या तुमको इसी खींच खांच के अपने मसलक का तर्जुमा करना था? कहाँ की बात कहाँ ला के रख रहे हो, ये सब कुछ करना था। अल्लाह हम आप सबको बचाए ऐसे ख्याल से। जो आयत पढ़ते हैं उसको अपने मसलक की तरफ खींच खांच के उसको आवाम को बताने की कोशिश करते हैं। मोहतरम, हम लोग अपना जायज़ा लेते चलें। और हाँ, लास्ट में बात एक ये आती है कि जैसे मान लिया वो उस कौम को मान लिया हटा दिया जाता है जो रास्ते हट जाती है, भटक जाती है। वाकई सही बात तो यही है कि हम बिल्कुल कुरान मजीद से बिल्कुल हट गए हैं। जो कुछ कर रहे हैं दीन के लिए नहीं, नाम तो दीन का होता है, लेकिन दीन की आड़ में सारे के सारे सब अपने गिरोह बनाने की चक्कर में पड़े हुए हैं। और यही है जो आजकल मसला सामने आ रहा है कि हम लोग अपने रास्ते हट गए हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी के उसमें हम सबको हटाने की कोशिश कर रहा हो। जो भी ज़रिया अख्तियार करे और उनकी जगह पे कौन लोग आ रहे हैं ये भी ध्यान में आता है। वो लोग हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं, समझते हैं, 4-4, 5-5 साल समझने के बाद में ईमान ला रहे हैं। उनका किसी फिरके से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो है अगर देखा जाए असली और सही मुसलमान वो हैं। हालांकि वो अभी अलिफ बा के तालिब इल्म है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके अंदर का ईमान जो है, जी हाँ, उनके अंदर का ईमान जो है हमसे मजबूत है, हमसे लोहा लाट है। अगर मान लिया आज छांट दिया जाए प्योर मान लिया इस्लाम को समझे हुए लोग इधर आ जाएं, जो मान लिया सिर्फ और सिर्फ वो इस्लाम, वो दिन जो सहाबा कराम के अंदर था, जो खुलफाए राशिदीन के अंदर था, क्या वो दिन हमारे अंदर बाकी है? आप बताइए। अच्छा, चाहे जिस मसले से हमारा और आपका ताल्लुक़ हो, जिससे कोई लेना देना नहीं, बताइए उनका ताल्लुक़ किस दूसरे फ़िरके से था? कौन सा फ़िरका उनका था? ये तो जवाब नहीं हुआ। हाँ, वो मान लिया जो हक पर थे, वो हक पर थे। अरे हक पर तो थे ही, उनको कौन कह रहा है, लेकिन बात तो ये है उनका कौन सा फ़िरका था, इसका जवाब दीजिए। तो शायद अगर आप सामने वाले से पूछ दें तो इसका जवाब उनके पास ना हो। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें अभी सवेरा है, अभी आँख खुली है, अभी अपने को संभलने और इरके फिरके से निकलने की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ दीन के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने जहन को हर उससे पाक साफ करके समझने और सोचने की सलाहियत भी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।